Okay. So in today's class, we will study about this vascular tissue system. In earlier class, we have studied about two basic vascular tissue system, which one was epidermal tissue system, other was ground tissue system. Epidermal tissue system contained only what? Epidermis, and inside the epidermis there was a part stomata. And ground tissue system, it forms the major part of the plant body, and it was contained in mass, or you can say bulk. Then it was divided into three main parts: cortex and pericycle and pith. Again, cortex is subdivided, then pericycle and pith are the part of stele. These all things which we have studied in the previous classes. Have you understood about the previous class, each and every topic? Yes, Yes. ma'am. Okay. So now today we will study about this vascular tissue system. First of all, vascular tissue system क्या होता है? It is the kind of tissue system which includes the vascular parts like xylem and phloem. Xylem and phloem are what? Vascular parts of the plant body. Xylem conducts water and phloem conducts food transport. So these two main system altogether forms vascular tissue system. And now vascular tissue system are based on the arrangement of xylem and phloem, how these xylem and phloem are arranged. They are three different kinds in plants. One is radial, another is conjoint, and the third one is concentric. So in तीनों में भी different variety है. So first of all, radial. Radial is always found in roots. Radial vascular system will be seen in where? Roots में. Roots यानी कि चाहे monocot root हो चाहे dicot root हो, you will be able to find this radial vascular tissue system. Radial vascular tissue system में क्या होता है? यहाँ पे देखो xylem and phloem fully एक दूसरे से अलग रहेंगे और एक रेडियली अरेंज रहेंगे एक एक लेयर में. देखो यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है. और जाइलम भी देखो फ्लोएम से बिल्कुल ही अलग है. सो जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन डिफरेंट पेरिफेरी एंड अरेंज्ड ऑन डिफरेंट रेडियाई. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेडियल टिश्यू सिस्टम, सॉरी रेडियल वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. सेम वही चीज मैंने लिखा है, जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड ऑन डिफरेंट रेडियाई. कैम्बियम इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में एब्सेंट होता है, बाद में बनता है. कब बनता है? जब secondary growth का time आता है. Means when the lateral meristem gets formed after the formation of lateral meristem. Lateral meristem क्या थे? वो secondary meristem होते हैं. तो जब तक secondary meristem नहीं बनेगा तब तक क्या होगा? कैम्बियम फॉर्मेशन नहीं होगा. यानी कि स्टार्टिंग में इनिशियली कैम्बियम इज एब्सेंट, but it develops later on after the formation of secondary meristem. And secondary meristem का first example क्या है? Lateral meristem. एक और मैंने example दिया था क्या? Fascicular cambiums, interfascicular और interfascicular cambium. तो ये दोनों चीज यानी कि lateral meristem और fascicular cambiums दोनों ही secondary meristem के examples हैं और secondary meristem के formation के बाद ही cambium का formation होता है. ठीक है. Initially these two things are absent in the xylem and phloem radial arrangement of roots. Okay. Now conjoint. यहाँ पे भी फिगर में देख लो. Radial arrangement में this one is xylem and this one is what? Phloem. दोनों ही क्या है? डिफरेंट अरेंजमेंट पे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, रेडियली डिफरेंट रेडियाई पे मिल रहे हैं, इसलिए दिस अरेंजमेंट इज रेडियल वन. नाउ द सेकेंड वन, ऑफ कोर्स कंसेंट्रिक वन वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट. सी कंसेंट्रिक वाले में क्या है? दो टाइप है, एक एम्फी वेसल एंड एम्फी क्राइबल. अब कंसेंट्रिक में क्या है? एक ही रेडियाई पे जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही अरेंज्ड है. मतलब कि एक पर्टिकुलर टिश्यू सिस्टम में लोगी तो उसी टिश्यू सिस्टम में तुम्हें जाइलम भी दिखेगा, उसी टिश्यू सिस्टम में तुम्हें फ्लोएम भी दिखेगा. तो दैट पार्ट ऑफ द concentric vascular tissue system in which xylem is on the outer side and phloem is in the inner side. तो ऐसे को क्या कहेंगे? एम्फीवेसल concentric vascular tissue system. क्या कहेंगे? एम्फीवेसल concentric vascular tissue system. ठीक. और that kind of vascular tissue system in which phloem is found on the outer side and xylem is on the inner side, that kind of tissue system will be amphicribal concentric vascular tissue system. Okay. तो तुम एक के रिस्पेक्ट में अगेन याद कर सकती हो, चाहे इस वाले के रिस्पेक्ट में चाहे इस वाले के रिस्पेक्ट में. ठीक है. एम्फीवेसल में हमेशा क्या रहेगा? जाइलम बाहर रहेगा. तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एम्फीक्राइबल वाले में जाइलम अंदर रहेगा. ठीक. Now this one, conjoint. Again, conjoint is of two type, collateral and bicollateral. Collateral one में भी क्या है? Closed और open. अब देखो closed और open वाले में क्या है? The same definition. The kind of vascular tissue where xylem and phloem are found on the same radii. और same radii में भी कैसा arrangement होगा? Phloem
एंड जाइलम, जाइलम ऑन द लोअर साइड, फ्लोएम ऑन द अपर साइड। उसमें भी जिसके बीच में ये कैम्बियम की लाइन प्रेजेंट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैम्बियम की लाइन जिसके बीच में प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे ओपन। देखो यहाँ वाले में प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ओपन। और इस वाले में देखो कैम्बियम की लाइन नहीं प्रेजेंट है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम डायरेक्ट दिया हुआ है और फ्लोएम दिया हुआ है, दिस वन इज जाइलम, दिस वन इज फ्लोएम। इन दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं प्रेजेंट है, यानी कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। ये कहाँ देखा जाएगा, मोनोकॉट रूट में। मोनोकॉट रूट डज नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। सो द काइंड of vascular tissues where xylem and phloem are present on the same radii but they don't have cambium in between them, that kind of tissue system is collateral and closed. इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ये collateral है, closed है, collateral and closed। ठीक, अब इसके लिए क्या कहेंगे, collateral है और open, collateral and open। open क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है, और जब कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा देन दिस काइंड ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ एंड हियर सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम। ठीक, अब बाइकोलैटरल में क्या है, ऐसे यहाँ पे भी क्या है, फ्लोएम रहेगा और यहाँ पे भी फ्लोएम रहेगा, बीच में क्या रहेगा, जाइलम रहेगा, और इन दोनों के बीच में ही क्या रहेगा, कैम्बियम का लेयर दिखेगा। तो ये आउटर कैम्बियम हो जाएगा, ये इनर कैम्बियम। सो फॉर श्योर यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, श्योरिटी है, सेकेंडरी ग्रोथ का श्योरिटी है। एंड इनिशियली स्टार्ट्स, जैसे बाकी में हमने क्या बताया कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इनिशियली कैम्बियम का प्रेजेंस नहीं शो करता, बट इस वाली काइंड ऑफ बाइकोलैटरल वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम कैम्बियम का प्रेजेंट स्टार्टिंग से ही है, इनिशियली कैम्बियम स्टार्ट से ही प्रेजेंट है। ओके, सो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे क्या होगा, फॉर श्योर सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन दिस काइंड ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो दीज आर ऑल ऑफ 3 types I have also written. So let's see the same thing. Xylem and phloem are present on the same radii. See from the figure also. अब उसके अंदर भी ये conjoint वाले के अंदर भी दो टाइप हमने देखा, conjoint open and conjoint close. Close वाला कहाँ था, जिसमें xylem और phloem के बीच में कैम्बियम एब्सेंट था। open वाला कहाँ है, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है। सेम थिंग on the basis of present और absent of cambium। देखो जिसमें conjoint और open है, और क्या है, डाइकॉट स्टेम में देखो बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, इसलिए क्या है ये कॉन्जॉइंट ओपन वन, इसमें कैम्बियम एब्सेंट है इसलिए कॉन्जॉइंट क्लोज वन। देन अगेन कोलैटरल कॉन्जॉइंट का ही कितना देखा हमने, ओपन क्लोज तो देख लिया। अब क्या है बाइकोलैटरल वाला, बाइकोलैटरल में देखो ऊपर भी फ्लोएम है नीचे, सो 2 पैचेस ऑफ फ्लोएम इज प्रेजेंट एंड फॉर श्योर इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होना है। तो इस फिगर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्जॉइंट भी है, कोलैटरल भी है और ओपन भी है। एंड इस सेम चीज कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज, ये जो तीनों लाइन है, these 3 lines can be asked in entrance exams। these फिगर देके पूछ सकता है कि what is the system of this kind of vascular tissue showing। so if this kind of diagram has been seen in the paper or anywhere, so this kind of system is showing what, conjoint one, collateral and open, and again cambium absent है तो same conjoint, collateral and close। same here कॉन्जॉइंट तो है लेकिन कॉन्जॉइंट में कौन सा है, बाइकोलैटरल वन, और बाइकोलैटरल में क्या है, ओपन है क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है। अरेंजमेंट, अब देखो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का टाइप हमने देख लिया, अब ये देखना है कि ये रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में कैसे अरेंज्ड है। ठीक है, फॉर श्योर ये हमने शुरू में ही देख लिया कि रेडियल वाला रूट्स में ही पाया जाता है वैस्कुलर टिश्यू का अरेंजमेंट। सो वैस्कुलर टिश्यू कैसे अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड है और एक्सार्च होते हैं। दिस वन वी हैव सीन इन स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर और आई थिंक मॉर्फोलॉजी ऑफ द चैप्टर। सो इसमें क्या था, स्टार्टिंग चैप्टर में आई थिंक था, एक्सार्च वाले में क्या था, जो प्राइमरी प्रोटोजाइलम थे, प्रोटोजाइलम क्या थे, आउटर साइड में थे, और मेटाजाइलम क्या थे, इनर साइड वाले में थे। ठीक है, फ्रॉम द फिगर आल्सो आई विल शो। तो अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में रूट्स में कैसा है, एक तो रेडियल फॉर श्योर, एक्सार्च फॉर श्योर, मतलब कि मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट रूट हो, अरेंजमेंट यही रहेगा, रेडियल एंड एक्सार्च। जो मेन पॉइंट है that I have written in green one from the figure also, let me show you in the dicot root, see some of the things are clear, yes, now in the figure see this one, okay I have written opposite one, let me correct that one first, protoxylem is on the inner one and metaxylem is on the outer side, so that is why it is saying the exarch one, protoxylem here, protoxylem inner side, okay, inner and metaxylem outer side। ठीक है, so exarch condition with respect to protoxylem only in roots, protoxylem will be found inside the inner side and metaxylem will be found on the
आउटर साइड ऑफ द रूट ट्रांसवर्स सेक्शन। जहाँ पे हम लोग वैस्कुलर बंडल्स का स्टडी करेंगे वहां पे कैसा अरेंजमेंट होगा रूट्स का, प्रोटोजाइलम इनसाइड की तरफ रहेंगे, लार्ज रहेंगे, और मेटाजाइलम क्या रहेंगे, आउटसाइड की तरफ रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, क्योंकि वो लोग बाद में फॉर्म हो रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम अरेंज है डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, जाइलम बंडल्स। डाइकॉट रूट में जाइलम बंडल्स का कितना नंबर होता है एंड मोनोकॉट रूट में जाइलम बंडल्स का कितना नंबर होता है? सो इन डाइकॉट रूट्स it can be 2, it can be 4, it can also be 6, so it varies from in between 2 to 6. So 2 रहेगा तो डाइआर्च, 4 रहेगा तो टेट्रार्च, 6 रहेगा तो हेक्सार्च, एंड सेम वे मोनोकॉट रूट में 6 से ज्यादा ही रहता है हमेशा, तो इट इज पॉलीआर्च। अगेन शेप, डाइकॉट रूट में हेक्सागोनल शेप रहता है और मोनोकॉट रूट में या तो ओवल या स्फेरिकल। अब इसमें भी डाइकॉट रूट में क्या है, लेटर डेवलप होता है कैम्बियम, वी हैव ऑलरेडी सीन, और मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, इसलिए क्या है, कैम्बियम एब्सेंट है। इसको मैं फिगर से भी बताती हूँ। मोनोकॉट रूट देखो, ये एक पार्ट देखो, अगर लेके हम लोग देखें इस एक पार्ट को यहाँ पे, तो ये कैसा है, ऐसा है, हेक्सागोनल शेप है, हेक्सागोनल शेप फर्स्ट ऐसा अरेंज है, इसके ऊपर फिर एक और छोटा अरेंज है, फिर और एक ऐसा छोटा सा अरेंज है। सो ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, एक्सार्च कंडीशन, और ये क्या है, प्रोटोजाइलम है, ये वाला क्या है, मेटाजाइलम है। सी शेप भी क्या है, एक्सार्च हेक्सागोनल शेप है, और नंबर देखो 1 2 3 4, 4 ही नंबर है, तो यहाँ पे इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, टेट्रार्च। ठीक, सेम वे मोनोकॉट रूट में भी यही है। अब देखो मोनोकॉट रूट में मैंने कहा ना 6 से ज्यादा होगा, तो कितना है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मोर देन 6, सो वी आर सेइंग पॉलीआर्च, पॉलीआर्च कंडीशन इज देयर। यहाँ पे शेप देखो, इफ यू कैन जूम इट आउट, सो इस वाले का शेप कैसा है, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है, इधर ओवल और स्फेरिकल इन शेप, एंड वैस्कुलर बंडल्स आर मोर देन 6, सो सेम थिंग आई हैव रिटन हियर। अरेंजमेंट कैसा है वैस्कुलर बंडल्स का, डाइकॉट रूट में 2 से 6 के बीच में हो सकता है, मोनोकॉट रूट में 6 से ज्यादा ही होता है। शेप देखा हमने कि हेक्सागोनल शेप था, यहाँ पे ओवल और स्फेरिकल देख लिया। यस सना, हेलो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू मैम। मोनोकॉट में फर्स्ट वन जाइलम बंडल्स मोर देन 6 पॉलीआर्क। हाँ, पॉलीआर्क ज्यादा, 6 से ज्यादा होगा तो पॉलीआर्च बोलेंगे। क्यों पॉली, मतलब कि 6 से ज्यादा कितना भी हो सकता है काउंट, 6 तक तो हेक्सागोनल है, 6 से ज्यादा हो जाएगा तो नाम रखना मुश्किल था, इसलिए दे आर सेइंग कि पॉलीआर्च। ठीक, नाउ अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू स्टेम में कैसा है। अब स्टेम में हमेशा देखो, जैसे उसमें क्या था, ये एक्सार्च कंडीशन थी रूट्स में, इसमें स्टेम में क्या रहेगा, इंडार्च रहेगा। सेम थिंग, प्रोटोजाइलम क्या रहेगा, अब इसमें प्रोटोजाइलम, अब इसमें क्या हो जाएगा, आउटर वन, और मेटाजाइलम इनर वन, इनर। ठीक, अब डाइकॉट स्टेम में स्टीली, व्हाट वाज स्टीली, डिफाइन स्टीली सना। मैम नॉट रिमेम्बर। Okay, so steely, definition of steely is like this: all the tissues that are present beneath the endodermis layer या endodermal tissue। तो जितने भी टिश्यू, endodermal tissue, कॉर्टेक्स का थर्ड पार्ट क्या था, endodermis, तो endodermis के जितने भी नीचे जितने भी टिश्यू मिलेंगे, like pericycle, pith, medullary rays, each of these tissues will come under steely। तो डाइकॉट स्टेम में हम लोग स्टीली के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो स्टीली क्या है, प्रॉपरली अरेंज्ड है रिंग में। ठीक है, और जब प्रॉपरली अरेंज होता है, अर्लियर वी यूज्ड टू स्टडी टाइप ऑफ स्टीली, लाइक यू स्टीली मतलब प्रॉपरली है, जो स्कैटर्ड होता है, इसको बोलते हैं एटैक्टो स्टीली, मेनी मोर टाइप ऑफ स्टीली आर देयर। तो अब तो वो सिलेबस से काफी पहले ही हट चुका है। ठीक है, तो नाउ स्टीली के टाइप के बेसिस पे अगर हम बात करें तो पहला डाइकॉट स्टेम में क्या है, प्रॉपरली अरेंज्ड होता है रिंग में, एक रिंग के फॉर्मेशन में अरेंज होता है, और मोनोकॉट में क्या है, वो ऐसे स्कैटर्ड होता है। डायग्राम में भी देखो डाइकॉट स्टेम, देखिए देखो कितने प्रॉपरली अरेंज्ड है, ये देखो 1 2 3 4 5 एकदम प्रॉपरली रिंग के फॉर्म में अरेंजमेंट दिख रहे हैं। और मोनोकॉट वाले स्टेम में देखो वैस्कुलर टिश्यूज कैसे हैं, अपने आप स्कैटर्ड में है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। सो वैस्कुलर टिश्यू का अरेंजमेंट अगर स्टीली के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या है, एक रिंग में प्रॉपरली अरेंज्ड है, कहाँ, डाइकॉट स्टेम में, और मोनोकॉट स्टेम में वो स्कैटर्ड है। सो जो प्रॉपरली अरेंज होते हैं उन्हें यूस्टीली कहते हैं, और जो स्कैटर्ड होता है उन्हें क्या कहते हैं, एटैक्टोस्टीली। अब वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा है, किस तरह से वैस्कुलर बंडल है, तो डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और कोलैटरल तो होते ही है। अब डाइकॉट वाले में ओपन रहेंगे और मोनोकॉट वाले में क्लोज, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट क्लोज।
ठीक. नाउ बंडल शीथ आर समथिंग दैट आर ओनली फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम. ठीक है, तो मोनोकॉट स्टेम के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, लेट मी शो यू फ्रॉम द फिगर. मोनोकॉट स्टेम देखो, ऐसे जूम आउट करके देखो, ये छोटा छोटा चेहरा दिख रहा है, छोटा छोटा ऐसा लग रहा है किसी का फेस बना हुआ है. और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक वैस्कुलर बंडल के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है. इस वैस्कुलर बंडल को ले लो, चाहे इस वैस्कुलर बंडल या इस वैस्कुलर बंडल, तो हर एक वैस्कुलर बंडल के आसपास क्या है, कवरिंग है. जैसे इसको जूम आउट करके देखो, तो दिस वन इज जाइलम, दिस वन इज फ्लोएम, हियर इट इज जाइलम. ठीक, और ये जाइलम, ये जाइलम या इस फ्लोएम या इस जाइलम, इन सब के अराउंड क्या है, देखो ये ब्लैक वाला, ये सब क्या है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल है ना. स्क्लेरेंकाइमा देखो, जब मैंने क्या कहता है, ऐसे डिब्बे के अंदर डिब्बा होगा तो कौन सा टाइप का सेल होगा, स्क्लेरेंकाइमेटस. तो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल देखो, यहाँ बंडल शीथ लिखा है, तो बंडल शीथ क्या है, स्क्लेरेंकाइमेटस है. स्क्लेरेंकाइमेटस ये सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, मोनोकॉट स्टेम में. सो ये चीज, ऐसा अरेंजमेंट जो वैस्कुलर बंडल्स को चारों तरफ से कवर किया है, ये ऐसा अरेंजमेंट डाइकॉट स्टेम में नहीं है. देखो वैस्कुलर बंडल्स क्या है, सिंपली अरेंज्ड हैपनिंग में. देखो, सो in dicot stem bundle sheath are absent and in monocot stem bundle sheath are present. और कैसे हैं, sclerenchymatous in nature. अब साइज का बात करो तो डाइकॉट स्टेम में हर एक वेस्कुलर बंडल सेम साइज का होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट साइज का होता है मोनोकॉट स्टेम में. अभी फिर मैं डायग्राम के पास जाती हूँ. स्मॉलर कहाँ होता है, जब पेरीफेरी के साइड होता है और ज्यादा घिरा हुआ रहता है, मतलब मोर इन नंबर. और लार्जर कहाँ रहता है, अंदर की साइड में और लेस इन नंबर. ठीक है, फिगर से भी देख लो. डाइकॉट देखो प्रॉपरली अरेंज्ड है ना, 1 2 3, और एकदम अच्छे से अरेंज्ड है वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर बंडल्स. बट मोनोकॉट वाले में देखो क्या है, पेरीफेरी पे है दो साइज के. ये पेरीफेरी वाला देखो छोटा साइज का, और अंदर वाला देखो बड़ा साइज का है. बड़े साइज वाले क्या है, कम है, और छोटे साइज वाले क्या है, ज्यादा है. तो स्मॉलर इन नंबर एंड मोर इन डेंस, कहाँ पे, पेरीफेरी पे. और इन साइड में देखो, इनर साइड में लेस इन नंबर्स एंड बिगर इन साइज. साइज का हो गया, सेम साइज किसमें थे, वैस्कुलर बंडल्स डाइकॉट वाले में, और डिफरेंट साइज किसमें है, मोनोकॉट स्टेम में. जाइलम का अरेंजमेंट कैसा है, दोनों में ही इंडार्च है. इंडार्च कंडीशन पहले ही लिख दिया था. अब वाटर कैविटी देखो, ये भी समथिंग दैट इज प्रेजेंट ओनली इन मोनोकॉट स्टेम. वाटर कैविटी, लेट मी शो यू फ्रॉम द फिगर. इन बिटवीन दिस जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट, ये जो व्हाइट वाला ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं वाटर कैविटी और या ल्यूमेन. सो ल्यूमेन और वाटर कैविटी इज सच थिंग व्हिच इज फाउंड ओनली इन मोनोकॉट स्टेम. क्योंकि वैस्कुलर बंडल इनका कैसे है, डिस्कैटर्ड फॉर्म में है, अरेंज नहीं है प्रॉपर्ली, इसलिए इनके वैस्कुलर बंडल्स में जगह जगह पे खाली है. तो उस जगह जो खाली खाली जगह है, उसमें क्या है, वाटर कैविटी या ल्यूमेन पाया जाता है. ठीक, सो इट इज फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम एंड इट इज एब्सेंट इन डाइकॉट स्टेम. So this is arrangement of vascular tissue where in the stem. Now arrangement of vascular tissue in the leaf. लीफ में पहले ही क्या है, conjoined, collateral और closed. Closed किस लिए, क्योंकि लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता. Then bundle sheath cells are present. और प्रेजेंट है तो कैसे हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं. ठीक, पेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हैं. अब डाइकॉट लीफ में कैसा अरेंजमेंट है, डिफरेंट साइज के वैस्कुलर बंडल्स रहते हैं. थिक वेन्स जहाँ रहेंगे वो उसमें क्या रहेगा, लार्जर साइज रहेगा वैस्कुलर बंडल का. और जहाँ थिन वेन्स रहेंगे वहाँ क्या रहेगा, स्मॉलर साइज रहेगा वैस्कुलर बंडल का. देन मोनोकॉट लीफ में क्या है, दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू इमेजिन. ओके, मोनोकॉट लीफ में क्या है, वैस्कुलर, देखो मोनोकॉट लीफ का एक सेम मोटिव है कि उसमें ज्यादातर के सेल ऑलमोस्ट सेम शेप और सेम साइज के रहते हैं. ठीक है, तो जितना भी साइज रहेगा वैस्कुलर बंडल्स को, वो भी ऑलमोस्ट सेम साइज के रहेंगे. और सिर्फ जो मिड रिब में जिस लीफ में मिड रिब होगा, जिस भी लीफ में मिड रिब होगा, उस वही जगह पे थोड़ा सा मोटा या पतला देखने को मिल सकता है. अदरवाइज वैस्कुलर बंडल्स विल बी ऑफ सेम साइज इन द लीफ. देन जाइलम और फ्लोएम, एक फिगर से देख लो, जाइलम क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, और फ्लोएम क्या रहेगा, इनसाइड की तरफ. देखो जाइलम क्या है, अपर साइड में है. This one is xylem, it is on the upper side, and this one is phloem. See, it is on the lower side. Okay, so this is something which you can learn about the vascular tissue system of leaf. Yes. So any doubt in the vascular tissue system till now? कितने कितने तरह के होते हैं और कैसा अरेंजमेंट है? Any doubt? नहीं मैम. Okay. In the whole tissue system, epidermal, ground और vascular one, इन तीनों में कोई भी? ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. किसको? ग्राउंड सिस्टम. Okay, ground tissue system. So ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सेम तीन तरह के होते हैं. फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है और मेजर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी कौन बनाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. लेकिन जो एपिडर्मल पार्ट और वैस्कुलर पार्ट है, उसको छोड़ के जितना भी सारा पार्ट है वो प्लांट का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है.
अब 3 टाइप का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है बेसिकली, कौन कौन सा? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पिथ। ठीक, नाउ कॉर्टेक्स इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट एंड देन इट विल कम पेरिसाइकल एंड पिथ। हर एक के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे रूट एंड स्टेम के अलग एंड लीफ का अलग। ठीक है, तो रूट में व्हाट वी हैव सीन, पहले कॉर्टेक्स का पार्ट लेते हैं, टिश्यू। कॉर्टेक्स में क्या क्या है? 3 पार्ट, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड देन इंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है? बीइंग द अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर है तो प्रोटेक्टिव नेचर होगा। फिर इसमें क्या है? फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी है। अब ये सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टी लेयर्ड भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टेम और रूट इट इज फाउंड। तो हाइपोडर्मिस में रूट में हाइपोडर्मिस क्या है? कंप्लीटली एब्सेंट है, ये यहाँ नहीं पाया जाता है। स्टेम में क्या है? डाइकॉट स्टेम में कोलिनकाइमेटस है और मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमेटस है। फिर से फिगर से देखो, डाइकॉट स्टेम देखो, ये कॉर्नर्स की थिकनिंग, ये ब्लैक ब्लैक जो लाइनिंग है, दिस ब्लैक लाइनिंग इज व्हाट? कॉर्नर्स थिकनिंग एंड इट इज शोइंग व्हाट? कोलिनकाइमेटस लेयर। ये कोलिनकाइमेटस लेयर किसका है? हाइपोडर्मिस का है, हाइपोडर्मिस। और मोनोकॉट स्टेम में कैसे है? मोनोकॉट स्टेम में देखो, यही चीज किसका हो गया है? स्क्लेरेनकाइमेटस का, ये वाला स्क्लेरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस। ओके, अंडरस्टूड दिस मच कि हाइपोडर्मिस कैसा है? Yes, ma'am. ओके, नाउ हाइपोडर्मिस के बाद कौन सा पार्ट आएगा? जनरल कॉर्टेक्स। अब जनरल कॉर्टेक्स का सिंपल है कि रूट में चाहे मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट रूट हो, वो पेरेंकाइमेटस लेयर है। एंड स्टेम में आते हैं, डाइकॉट स्टेम में भी पेरेंकाइमेटस है और मोनोकॉट स्टेम में कंप्लीटली एब्सेंट है। मोनोकॉट स्टेम इज अ काइंड ऑफ प्लांट की उसमें बहुत सारी चीजें एब्सेंट है, लाइक कि इसमें तुम्हें इंडोडर्मिस नहीं मिलेगा, इसमें जनरल कॉर्टेक्स नहीं मिलेगा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, तो मेनी थिंग्स आर एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। बेसिकली तुम 3 चीज याद रखो, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम इज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट एज दीज 3। ठीक, तो जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट इन बोथ रूट एंड स्टेम, एंड डाइकॉट स्टेम में पेरेंकाइमेटस होता है, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है। और रूट में चाहे मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट रूट हो, इट इज पेरेंकाइमेटस लेयर। इंडोडर्मिस, ठीक, इंडोडर्मिस क्या है? सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल टू मल्टी लेयर्ड नहीं है। ठीक, अब इसमें भी क्या है? जब भी अगर रूट का बात आएगा तो रूट में क्या है? डिस्टिंक्ट है, मतलब कि अच्छे से दिख रहा है इंडोडर्मिस का लेयर। बैरल शेप्ड मतलब ऐसे है, ये वाला लेयर, दिस लेयर इज व्हाट? बैरल शेप्ड। ये वाला सिलिंड्रिकल शेप हम लोग ऐसे घुमा के बनाते हैं, लेकिन ये क्या है? बैरल शेप में हल्का सा बीच में मोटा हो जाता है, सो इट इज बैरल शेप। लेयर कैसा है? पेरेंकाइमेटस लेयर है। ठीक, अब इंडोडर्मिस के टिश्यू के बीच में ही some other kind of cells are also present, and those other kind of cells are called as Casparian strips. Inside on these Casparian strips, suberin deposition is present. Now, due to the deposition of these suberin on the Casparian strips, water transport is prohibited in these areas. अब देखो, जाइलम का काम ही क्या है? रूट का काम क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो रूट के लेयर में ही एक ये लाइन कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गया जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है प्लांट विल गेट अफेक्टेड। फॉर दैट कि प्लांट अफेक्ट ना हो, सम अदर काइंड ऑफ सेल्स आर देयर जिसके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होता, लाइक दिस वन। देखो, इसके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है, सो दोस काइंड ऑफ सेल्स इनसाइड द एंडोडर्मिस ओनली व्हिच डू नॉट हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, those cells are called as passage cells और path cells. इनका काम क्या होता है? वाटर के ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाना। ठीक, सो endodermis layer is found both in monocot and dicot root, and these layer are well distinct in monocot and dicot root. They have casparian strips as well as passage cells. Okay, now coming to the dicot stem, endodermis is called as starch sheath. यहाँ पे डाइकॉट स्टेम में इंडोडर्मिस ना बोल के क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ या स्टार्च ग्रेन। और ये क्या है? वेल डेवलप्ड नहीं होता, वेल डिस्टिंक्ट नहीं होता। इसका जो पेरिसाइकल का लेयर है इंडोडर्मिस उससे मिला हुआ होता है, लाइक दिस वन। इट इज डाइकोटिलिग्नस स्टेम। सी दिस लेयर इज लेट मी फाइंड इट आउट फर्स्ट। या सो ये वाला लेयर क्या है? इंडोडर्मिस के पहले वाला। सो जस्ट इसी के इंडोडर्मिस के लेयर के पहले क्या हो रहा है? ये और ये लेयर आपस में मिल जा रहा है। ठीक, सो
यहाँ पे जस्ट इसके बिलो ही देखो वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट हो जा रहा है, पेरिसाइकिल कहाँ है, पिथ कहाँ है, इसमें नहीं पता चल रहा है। सो द डाइकॉट स्टेम में क्या हो रहा है, नो क्लियरेंस ऑफ द इंडोडर्मल ग्राउंड टिश्यू, ठीक। सो इसलिए क्या है, इसमें कायदे से पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा इंडोडर्मल लेयर है, या स्टार्च शीथ या स्टार्च प्लेन, इसलिए इसको नाम दे दिया गया। और मोनोकॉट स्टेम में क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट है, ठीक। नाउ इन स्टीली क्या होती है, दोज tissues which are present beneath the endodermis are called as stele. अब क्या क्या आएगा उसमें, pericycle, pith, medullary, rays. Up to here, have you understood one part of general ground tissue system, that is cortex? Yes, sir. तो समझ में आया, ठीक है। चलो अब पेरिसाइकल, पेरिसाइकल में क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है स्टीली का, लेकिन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सेकेंड लेयर है, कॉर्टेक्स के बाद का लेयर है, ठीक। सिंगल टू मल्टी लेयर हो सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और इसका काम भी क्या है, स्टोरेज। अब डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में अलग अलग अरेंजमेंट है। डाइकॉट रूट में क्या है, जो पेरिसाइकिल है वो क्या करता है, लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ब्रांचेस, ये वाला। और पेरिसाइकिल क्या हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, कहाँ पे, डाइकॉट रूट में। अब मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, तो सिर्फ क्या मदद करता है, पेरिसाइकिल लैटरल रूट बनाने में, जो कि क्या होता है, पेरेंकाइमेटस होता है। अगेन मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट हो गया। डाइकॉट स्टेम में देखो दो तरह से हो जाएगा, एक होता है स्क्लेरेंकाइमेटस लेयर का, और दूसरा होता है पेरेंकाइमेटस लेयर। पेरिसाइकिल का ही जो सेल्स है वो दो तरह से पाया जाएगा, कहाँ, डाइकॉट स्टेम में। एक पेरेंकाइमेटस लेयर पाया जाएगा और एक स्क्लेरेंकाइमेटस। यहाँ से देखते हैं फिर से डाइकॉट स्टेम साफ करके देखते हैं। डाइकॉट स्टेम में ढूंढना पड़ेगा, और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरिसाइकिल ना, सिंगल बंडल का प्राइमरी प्लान पेरिसाइकिल। ओके सी, ये वाला जो है, ये जो बीच में वैस्कुलर बंडल के बीच में है, ये सब पेरिसाइकिल ही है। तो ये सारे पेरिसाइकिल किसके बने हैं, पेरेंकाइमेटस लेयर के। लेकिन जो ये सारा पार्ट है देखो वैस्कुलर बंडल के ऊपर, ये वाला जो पेरिसाइकिल है, ये वाला और ये वाला, ये सब क्या है, देखो स्क्लेरेंकाइमेटस लेयर से। किसके बने हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस। सो दो तरह का पेरिसाइकिल का लेयर है, कहाँ पे, डाइकॉट स्टेम में। एक है स्क्लेरेंकाइमेटस, दूसरा है पेरेंकाइमेटस। अंडरस्टूड अबाउट पेरिसाइकिल? Yes, sir. Okay. The third layer of ground tissue system is pith और medulla. ये क्या होता है, पेरेंकाइमेटस लेयर होता है, जिसके पास इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। अब डाइकॉट रूट में क्या है, बहुत अच्छे से वेल डेवलप नहीं होता है, छोटा होता है या इनकंस्पाइकुअस। तीनों एक ही नाम है, और तीनों मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स वगैरह में टफ वर्ड्स दिए जाते हैं, सो एज टू कंफ्यूज। इनकंस्पाइकुअस ऑल्सो मीन्स स्मॉल, ओके। एंड मोनोकॉट रूट में क्या होता है, लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है और कंस्पाइकुअस होता है, ठीक। फिगर से भी देख लो, इसमें देखो कितना छोटू सा दिया है, बस इतना ही लेयर है पिथ का, छोटू सा। और यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा लेयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक। तो वेल डेवलप्ड कहाँ है, मोनोकॉट रूट में, और लेस डेवलप्ड कहाँ है, डाइकॉट रूट में। डाइकॉट स्टेम में क्या है, वेल डेवलप्ड, प्रेजेंस ऑफ मेडुलरी रेस भी देखा जाता है। और मोनोकॉट रूट में क्या होता है, एब्सेंट होता है, सॉरी मोनोकॉट स्टेम में। मोनोकॉट डाइकॉट, यस। अब देखो यहाँ पे इतने अच्छे से पिथ डेवलप है, उसके साथ साथ 1 2 3 देखो जितना भी वैस्कुलर बंडल के बीच में ये पिथ का ही क्या है, एक्सटेंशन है। पिथ के एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी रेस। तो डाइकॉट स्टेम में पिथ वेल डेवलप्ड भी है, एट द सेम टाइम पिथ हैज सम एक्सटेंशंस आल्सो in between the vascular bundles, and those extensions in between the vascular bundles are called as medullary rays. Okay, any doubt? अब मोनोकॉट्स में देख लो, मोनोकॉट स्टेम में क्या है, नो मेडुलरी रेज नो पिथ, पिथ ही नहीं प्रेजेंट है तो मेडुलरी रेज क्या होगा, ठीक। सेम एज रिटन, मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है। सो दिस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू रूट एंड लीफ। इतना समझ में आया कि लीफ में कैसा, सॉरी रूट और स्टेम में कैसे कैसा अरेंजमेंट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का? Yes, ma'am. ओके। अब लीफ में कैसे होता है, लीफ में सबसे पहले ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नहीं बोलते हैं। वो कॉर्टेक्स पिथ में डिफरेंशिएट नहीं है, पेरेंकाइमेटस सेल्स का बना है। अब लीफ भी हमने देखा है, टू काइंड ऑफ लीव्स आर देयर, वन इज डाइकॉट लीफ, अदर इज मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ में सब कुछ सेम शेप और सेम साइज का होता है, इसलिए ज्यादा डिवीजन नहीं देखा जाता, इसलिए हम लोग इसको आइसोबायलैटरल लीफ भी बोलते हैं। अब मोनोकॉट लीफ में एक चीज याद रखना है, जो मेसोफिल सेल्स हैं which are basically the ground tissue system, so वो divided नहीं है, और all the cells are same shape and size। तो ये तो पहले ही खत्म, इसका किस्सा उतना ही है कि मेसोफिल सेल डिवाइडेड नहीं है और सारे सेम सेल सेम शेप और साइज के होते हैं।
अब ये वाला पार्ट मेनली हमको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में जब ये पढ़ा जाता है तो इस वाले लीफ का पढ़ा जाता है, डाइकॉट लीफ का, जिसमें 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मेसोफिल सेल्स आर फाउंड. वन इज पेलिसेड, अदर वन इज स्पॉन्जी. यहाँ से देखो पेलिसेड वंस आर इलोंगेटेड वन, देखो इलोंगेटेड है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, और क्या है डार्क इन कलर है. डार्क इन कलर क्यों है? क्योंकि ऊपर की तरफ है और क्लोरोप्लास्ट क्या है इनमें ज्यादा है. सेम स्पॉन्जी वाले में देखो इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है, देखो इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट है, लाइट इन कलर है. क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कम है. क्यों क्लोरोप्लास्ट कम है? क्योंकि ये नीचे की तरफ है. ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी मेसोफिल. और इस वाले को क्या बोलते हैं? पेलिसेड मेसोफिल. एनी डाउट? सेम वही चीज है, elongated space absent axial. ठीक, so this is all about what ground tissue system of root, stem and leaf. Any doubt as whole? अब पूरा तो हमने पढ़ ही लिया कि रूट में कैसा अरेंजमेंट है, लीफ में कैसा अरेंजमेंट है और स्टेम में कैसा है. सो स्लाइड के थ्रू हम जाएंगे तो वेरी क्विकली. डाइकोटिलिडनस रूट में क्या क्या पार्ट होगा और क्या क्या नहीं होगा. देखो पहला लाइन क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का, जो क्या होता है? एपिडर्मिस. दूसरे में यहाँ से जनरल टिश्यू सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस. देखो ये कॉर्टेक्स किसका बात हो रहा है? दिस वन इज जनरल कॉर्टेक्स. हाइपोडर्मिस का लेयर एब्सेंट होता है रूट में. दिस वन इज डाइकोटिलिडनस रूट. एंड स्टीली में ही देखो क्या क्या आएगा? पेरिसाइकल आएगा, पिथ आएगा. यहाँ पे देखो पेरिसाइकल, वैस्कुलर स्ट्रैंड्स और पिथ. वैस्कुलर स्ट्रैंड्स में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का बात होगा. उसके बाद द थर्ड वन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम आएगा. ओके, vascular strand itself is vascular tissue system. So this is vascular tissue system. फिगर के थ्रू मैं समझा देती हूँ anatomy. This anatomy is this one. So we have all studied just to make it more better. Yes, this one. Dicot root has all the 3 tissue system. One is epidermal tissue system, another is ground tissue system, and the third one is vascular tissue system. The first layer of dicot root contains only this one, epidermal tissue system, which is formed of epidermis plus root hairs. Inside this epidermis only stomata will be seen. अब रूट है तो रूट में स्टोमेटा भी नहीं दिखेगा, ऐसे ही काट दो. सिर्फ एपिडर्मिस और रूट हेयर will be seen in dicot root. And epidermis is the outermost layer. Outermost layer होने की वजह से क्या है? Protective nature है. And it is giving rise to root hairs. And root hairs are helpful in what? Absorption of water and minerals. So epidermal tissue system का काम ही यही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, गैसियस एक्सचेंज प्रोवाइड करना. ठीक है, अब आता है क्या? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज बेसिकली दिस वन, ये वाला पार्ट, ये सारा, ये वाला भी, जितना भी ये पार्ट है, these are what? Ground tissue system. And this ground tissue system will include, in dicot root, hypodermis is absent, so it will include only what? Cortex, general cortex. Let me write it. General cortex and endodermis. ठीक. अब इसके बाद इंडोडर्मिस के नीचे जितना भी पार्ट है वो किसमें आ जाएगा? स्टीली में. स्टीली में क्या क्या आ जाएगा? पिथ आ जाएगा, पेरिसाइकल आ जाएगा, और स्टीली के अंदर ही वैस्कुलर स्ट्रैंड्स को भी ले लिया गया है, क्योंकि सारा पार्ट इंडोडर्मिस के नीचे ही तो है. देखो इंडोडर्मिस के नीचे ही तो आ रहा है ये वैस्कुलर स्ट्रैंड. तो वैस्कुलर स्ट्रैंड, ये वाला पार्ट, ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है. ठीक, तो ये ब्राउन वाला पार्ट तो इंडोडर्मिस है. इंडोडर्मिस के नीचे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, जिसके अंदर क्या है? जाइलम और फ्लोएम है. सो जाइलम एंड फ्लोएम आर व्हाट? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. एंड दिस इज ऑल अबाउट डाइकॉट रूट. इसमें क्या क्या आएगा? हाइपोडर्मिस एब्सेंट होने के बाद सारा कुछ इसमें प्रेजेंट है. ठीक, इसमें एक चीज नहीं दिखा गया है, मेडुलरी रेज. इट विल बी फाउंड इन डाइकॉट स्टेम ओनली. सो एनी डाउट इन डाइकॉट रूट? इसका आता है पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, या डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडनस रूट, या ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ डाइकोटिलिडनस रूट ट्रांसफर सेक्शन. ठीक है, सो एनी डाउट इन दिस वन? नो मैम. ओके, सेम एनाटॉमी ऑफ मोनोकोटिलिडनस रूट भी आता है in the exam. If you can draw the diagram of TS of monocot root, or you have to define the structures of monocot root or dicot root. So चार के चारों diagram and चारों का जो part है, you have to remember by the help of diagram only. ठीक है, diagrams are much more important than the writing. इसमें भी same वही part होगा. क्या क्या? Endodermis, cortex, hypodermis, then will come the endodermis. After endodermis, pericycle, pith, vascular tissue system, xylem and phloem. Same things are here also. Okay. So basic difference I have already told you. This one is epidermal tissue system.
Then here comes ground tissue system. This one up to here endodermis. After endodermis, vascular tissue system will start. And this one here, pith is large in monocot root, pith is small in dicot root. तो ये सब बेसिक डिफरेंस वी हैव ऑलरेडी सीन. सेम लेयर वही आएगा. कैसे आएगा? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आएगा हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद आएगा जनरल कॉर्टेक्स. आफ्टर जनरल कॉर्टेक्स विल बी इंडोडर्मिस का लेयर. देन आएगा पेरिसाइकल का लेयर. आफ्टर पेरिसाइकल वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम विल बी सीन. इसमें जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट रहेगा. जाइलम एंड फ्लोएम. इसी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में फिर क्या रहेगा? सबसे इनसाइड में पिथ. ठीक. सो ऐसे ही हम लोग को बनाना भी होगा. ये फिगर बनाना बड़ा आसान होता है. ऐसे 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 बस गोला बनाते जाओ. When I used to study in class 11th and 12th, so these are most easy diagrams, I would say, because only we have to make circle of hexagonal or polygonal diagrams. Okay, so एक डायग्राम याद कर लोगी तुम्हें बेसिक डिफरेंस मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर मोनोकॉट डाइकॉट रूट सबका याद ही हो जाएगा. नाउ डाइकॉट स्टेम. As we have already seen कि pith यहाँ पे well developed है, well distinct है, and extension of pith is also present, that is medullary rays is also there, and vascular bundle का arrangement भी क्या है? Very distinct and very clear है. So इसमें भी क्या है? तीनों layer दिखेंगे तुम्हें. Like first epidermal tissue system is there, epidermis is there, and epidermis is having trichomes, that is stem hairs, and after stem hair or epidermis, hypodermis is there, and two different kind of hypodermis is there in the dicot stem and monocot stem. Different layers are seen. After hypodermis, what was the layer? Cortex. So general cortex layer is there. This one is what? This one is hypodermis, then general cortex. Then after general cortex, endodermis layer is there. Endodermis और पेरिसाइकिल इतना मिला हुआ है इसमें कि well distinct नहीं होता है. ये वाला लेयर देखो. ठीक. ये हाइपोडर्मिस है. हाइपोडर्मिस के बाद देखो इंडोडर्मिस दिया हुआ है. इंडोडर्मिस के जस्ट बाद पेरिसाइकल है. इफ यू कैन जूम इट आउट तो दोनों ऑरेंज के लेयर पे ही इंडोडर्मिस और पेरिसाइकल दिया है. यहाँ देखो ये वाला, ये आउटर लेयर पे इंडोडर्मिस का निशान दिया गया है देखो, और इनर वाले पे ऑरेंज वाले पे ही पेरिसाइकल का दिया है. दैट मींस इंडोडर्मिस इज गेटिंग मिक्स्ड विद पेरिसाइकल, सो नो distinct endodermis is seen in the dicot stem. Then after same pericycle, vascular tissues are present. Vascular bundle will include xylem and phloem, and inside innermost pith is present. और ये rays को भी देख लो, medullary rays. So इतना labeling होता है. Same वही चीज. Starting with the epidermis, ending with the pith or medullary rays. Then come again monocot stem. Monocot stem बहुत आसान है क्योंकि इसमें most of the things are absent. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, लेकिन उसमें भी क्या है? थोड़ा बहुत चीज एब्सेंट है. देखो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस का लेयर है. ग्राउंड टिश्यू में क्या है तो, लेकिन सिर्फ क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है, यानी कि इसमें हाइपोडर्मिस भी नहीं है, जनरल कॉर्टेक्स भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, इंडोडर्मिस भी नहीं दिखता है इसमें. देन पेरिसाइकल और पिथ का जो डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर्ली नहीं है. ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है? पेरिन्काइमेटस लेयर का तो है, लेकिन क्या है? स्कैटर्ड है, नॉट प्रॉपर्ली डिस्टिंक्ट और डिफाइंड. वैस्कुलर सिस्टम भी सेम वही चीज अरेंजमेंट होगा, स्कैटर्ड है. और वैस्कुलर अरेंजमेंट में भी क्या है? देखो एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट था ना. हर वैस्कुलर टिश्यूज को कौन कवर किया हुआ है? स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट. और इसमें क्या है? वैस्कुलर टिश्यूज के बीच में ही क्या प्रेजेंट है? वाटर कैविटी, जिसको लोग ल्यूमेन बोलते हैं. तो सेम थिंग्स आर रिटन इन द स्लाइड आल्सो. अब ये जो फीचर्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन वाले, दिस इज ओनली हेल्पफुल इन लेबोरेटरी एग्जाम्स. लेबोरेटरी एग्जाम्स में when we used to study in the practical exams, some samples of the transfer sections have been already inserted in the microscope. So what we have to do, we have to just look into the microscope for 2 to 3 seconds, and based on that we have to write कि किस चीज का ट्रांसफर सेक्शन कट करके माइक्रोस्कोप में रखा गया है. तो उसके लिए बस 2 या 3 मिनट मिलते थे. उस 2-3 मिनट में पहचान लो कि क्या है, एंड फॉर दैट आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इन द आंसर शीट. सो सेम थिंग्स कि कैसे किसी भी ट्रांसफर सेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, दो थिंग्स आर रिटन हियर. ठीक. सो सबसे बेसिक एग्जांपल मेजर वाला क्या है? स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स को पहचानना. ये वाला, ये डब्बे के अंदर डब्बा वाला सेल होता है, इसको पहचानोगी तो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स मोस्टली आर सीन इन क्या? डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में. तो पहले ही रूट का तो कैंसिलेशन हो जाता है.
फिर क्या होता है अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यूज। मोनोकॉट स्टेम बहुत अच्छे से पहचान में आता है। कैसे? क्योंकि उसमें ग्राउंड टिश्यूज क्या रहते हैं, प्रॉपर्ली स्कैटर्ड नहीं रहते हैं, नॉट वेल डिफाइंड, पेरिसाइकिल भी नहीं दिखता है कायदे से, पिथ भी नहीं रहता। तो जब पिथ ही नहीं है, क्योंकि पिथ इज फाउंड इन ऑल द थ्री लाइक मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रीड, तो इसमें पिथ ही नहीं दिखेगा तो अच्छे से पहचान में आएगा। देन प्रोटोजाइलम कैविटी प्रेजेंट है, वैस्कुलर बंडल्स, ये सब तो बात की बात आती है कॉन्जाइन कोलैटरल वाले में। सबसे मेन याद रखना स्क्लेरेंकाइमेटा सेल्स का प्रेजेंस होना, और जो ग्राउंड टिश्यूज है उसमें सारे चीज स्कैटर्ड रहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स भी क्या है, स्कैटर्ड है, पिथ एब्सेंट है। तो ये 3-4 चीज किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है, मोनोकॉट स्टेम में। अब देखते हैं सेम वेज डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट वाला। यस, डाइकॉट रूट के लिए क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होना है, रूट हेयर्स। रूट हेयर जनरली बहुत कम ट्रांसफर सेक्शन में दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखता ज्यादातर, ठीक है। तो ये याद रखना, कैस्पेडियन स्ट्रिप्स वाला। एब्सेंस ऑफ पिथ, पिथ होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, तो ये भी कट कर दो, एब्सेंस ऑफ पिथ वाला। रेडियल बंडल्स वाला याद रख लो, ये पता है क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे ही अरेंज रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाइलम एंड फ्लोएम रेडियली अरेंज है, मतलब कि डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट रहते हैं, वो रूट्स में ही कॉमन फीचर है। स्टेम ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा उसमें से। देन प्रेजेंस ऑफ एक्सार्च जाइलम, यानी कि प्रोटोजाइलम इनर साइड एंड मेटाजाइलम आउटर साइड। देन मोनोकॉट रूट को कैसे पहचाना जाएगा आइडेंटिफिकेशन में, सेम थिंग, प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स, अगर टीएस अच्छे से काटा गया है तभी दिखेगा। इंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, ये सही है। प्रेजेंस ऑफ पिथ इंपॉर्टेंट वन, ये वाला लाइन। देन प्रेजेंस ऑफ एक्सोडर्मिस, ये वाला लाइन नहीं, ये वाला लाइन। सिर्फ 2 चीज, radial bundles are more than 8 and presence of pith. These 2 main features will helpful in identification of monocot root. Then dicot root कैसे, dicot stem को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें भी Polymphymatous hypodermis, hypodermis का कैसा लेयर है, कॉर्नर थिकनिंग्स दिखेंगी उसमें माइक्रोस्कोप में, when you will see under the microscope. And multicellular hairs, ये trichomes दिखते हैं। dicot stem, whenever you will cut the transverse section of dicot stem, रूट हेयर्स तो बहुत मुश्किल से दिखते हैं, बट स्टेम हेयर सिंस दे आर थिक एंड मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर हेयर्स दिखते हैं। सो दीज टू विल बी सीन एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दीज आर द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। ओके, एनी डाउट इन दीज 4 different kind of monocot, dicot, stem or root? Yes, any doubt? No, ma'am. Okay, then final we will come to dicotyledonous leaf and monocotyledonous leaf. सेम थिंग जैसे हम पढ़ के आए हैं यहाँ पे भी होगा। एपिडर्मिस, लोअर एंड अपर। अपर वाला क्या होता है, अडैक्सियल, लोअर वाला अबैक्सियल। देन यहाँ पे मेसोफिल में कन्वर्ट हो जाता है क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, तो ये क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही। फिर मोनोकॉट रूट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन डाइकॉट रूट में क्या होता है, सॉरी, मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। सो डाइकॉट लीफ में 2 काइंड हो जाते हैं, एक तो पेलिसेड वाला, एक तो स्पॉन्जी। और मोनोकॉट लीफ में क्या है, नो डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोफिल सेल। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम सेम वही चीज, कॉन्जाइन कोलैटरल, इंडार्च एंड क्लोज्ड, ये याद रखना पड़ता है। वैस्कुलर बंडल ऑफ लीफ कैसा है, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ, दिस लाइन। एंड अगेन कंपेनियन सेल्स, सिव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब तो फ्लोएम का ही पार्ट है, तो जब फ्लोएम वैस्कुलर बंडल है तो ये सारी चीजें भी होंगी। अब वैस्कुलर बंडल्स का ये फिगर पूछता है, और बेसिकली इस फिगर में क्या पूछता है, ये पूछता है पेलिसेड मेसोफिल क्या है, स्पॉन्जी मेसोफिल क्या है, और वैस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज्ड हैं। ये पार्ट, ये तीनों पार्ट जब भी डायग्राम देगा तो पूछा जाएगा। एंड देन मोनोकॉटिलेडनस लीफ। Okay, so monocotyledonous leaf is containing the same things, epidermis, mesophyll, and midrib, vascular bundles. So midrib क्या है, widest part of the monocot leaf. ये midrib जब मोनोकॉट लीफ को बनाया जाएगा तो ऐसे इसमें मिडरिब दिखा जाएगा। सो जब लीफ का ट्रांसफर सेक्शन कट करना बहुत मुश्किल होता है, सो जब ये कट किया जाएगा तो मिडरिब भी आता है उसमें, और वो क्या रहता है मिडरिब, एक डिफरेंशिएटेड या कह लो वाइडेस्ट पार्ट मिलेगा, एंड लोअर सरफेस पे कम प्रेजेंट हो सकता है, अपर सरफेस पे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, ब्रॉडर रिच प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सेम विद आइडेंटिफिकेशन, ये हायर क्लासेस में आता है। लीफ का आइडेंटिफिकेशन इट विल ऑलवेज कम इन योर ग्रेजुएशन लेवल, बट स्टेम और रूट का आइडेंटिफिकेशन इट इज देयर इन क्लास 12th आई थिंक, एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ओके, so any doubt in the monocot, dicot, root, leaf, stem, anything? No, ma'am.